Assalamu alaikum everyone. Welcome to Global Sustain Hub Pakistan. I'm host Aksa Sandhu. Our organization is all about creating awareness about sustainability through education and collaborations. And I'm very honored to introduce our today's very special guest, Mr. Javed Iqbal Qazi Saab. They are former director of Department of Zoology. Would you please like to introduce our audience? As you have mentioned, I recently retired as Dean Faculty of Life Sciences and Director Institute of Zoology, Bajaj University, Lahore. My main area of research was microbial biotechnology, environmental sustainability, ecology. I supervised 35 PhD students, more than 100 MS MPhil students, and published over 230 research papers in this field. My many students are working in different organizations. This was very brief intro from my side. Let's turn towards our questions, and the first question is कि environmental, like आपने कहा कि आपका zoology से जैसे ताल्लुक है, तो obviously आपका environment से ही सारा ताल्लुक है, तो environmental challenges हमारी society को affect किस तरह कर रहे हैं? Basically, we all live in an environment, and we have impacts and influence on the environment, and environment feeds us, give us oxygen, all comforts we receive from the environment. So basically, under natural conditions, there is always a balance between the environmental comforts and the organisms which live in that particular environment. Unfortunately, this balance has been disturbed by the man ever-growing population, and now we are putting more disturbances, more pollutants, more insults to the environment which can naturally be accommodated. Especially this condition has worsened in our urban societies, where we put a lot of load in terms of pollutants which cannot be sustained or biodegraded within the limited sources of the natural environment we have. So this disturbance of the balance between the input and output have created a lot of problems, including diseases, pollution, toxicology, and many issues are due to this imbalance approach. Sir, हम इन्हें address कैसे कर सकते हैं, मतलब इन्हें minimize कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल? कि आपका जो क्वेश्चन है कि हम इनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मैंने कोशिश की है in first few sentences that nothing is stable in this environment. Everything is going to change. The oxygen I breathe, it would be converted into carbon dioxide. The carbon dioxide I will be exhaling, it will be uptaken by plants, it would be converted to oxygen and food for us. So this system is a two-way traffic between every organism and its environmental portion or its environmental part. No, in the nature there is a balance. The oxygen we required is provided by the plants, and the carbon dioxide which is required by the plant is provided by us and the animals. If anything is more than the needed environment, it would be toxic. What is toxicology? Nothing is toxic in this world, but everything is toxic in this world. It is the dose which differentiate between the beneficial effects and the harmful effects of any item. It may be chemical, it may be a physical factor. So अब हमने जो बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने इतनी अगर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं जितने हमारे प्लांट्स अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो ये भी पोल्यूटेंट बन जाएगा. अगर हम उतनी मिकदार में कर रहे हैं, उसकी एक रेंजेस होती है कि जो हमारे प्लांट्स अपटेक करके उसको फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन भी बनाए, ग्लूकोज भी बनाए, फिर तो कोई मसला नहीं है. और पहले की कोई मसला नहीं था जब इंसान की आबादी थिन थी और एनवायरनमेंट अकोमोडेटिव था और हम एनवायरनमेंट पे बोझ नहीं बन रहे थे और उससे फ़ायदे उठा रहे थे. अब मुसीबत ये होगी कि हम फ़ायदे तो अब भी उठा रहे हैं, लेकिन अब हम एनवायरनमेंट के लिए बोझ बन गए हैं. उसके ऊपर हम इतना लोड डाल देते हैं, इतने आउटपुट पोल्यूटेंट्स डाल देते हैं जो उसकी अकोमोडेशन कैपेसिटी से बढ़कर हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, वगरना तो प्रॉब्लम ना था. Very well said, sir. Our second question is कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और उसका और सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का क्या कनेक्शन है? लेकिन अब इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेंट्स जनरेट हो रहे हैं, अगर वो उतनी मिकदार में है कि जितनी मिकदार में मेरे मुल्क के रिवर्स, एटमॉस्फेयर, साइल, प्लांट्स उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको बायोरिमिएट कर सकते हैं, उनकी टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं. लेकिन अगर मैं इसलिए कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है और मैं रात दिन शिफ्टें लगाऊँ और रात दिन मशीनें चलें और रात दिन पोल्यूटेंट्स जो हैं हैवी अमाउंट्स में मेरे एनवायरनमेंट में फैल जाएँ और मेरी एनवायरनमेंट की अकोमोडेशन कैपेसिटी में एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ इतनी नहीं है, उन पोल्यूटेंट्स को जो है रीमीडिएट कर ले, रिसाइकल कर ले, तो मेरे लिए मसला होगा. तो इसलिए किसी भी मुल्क की, किसी भी खित्ते की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इसके एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए. इसके लिए स्टडीज़, लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमारे मुल्क में बहुत वीक है. पहले तो स्टडीज़ ही नहीं है जो पिन पॉइंट करके हमें बताएं कि ये इफेक्ट हो रहे हैं. अगर हैं, उनकी लेजिस्लेशन बनती नहीं, बने तो इम्प्लीमेंट नहीं होती, हालात आपके सामने हैं.
कार्बन फुटप्रिंट्स जो है ना वो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर हमारे यहाँ, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है। अब आप कोई ऐसे हल बताएं कि इंडिविजुअल उसे यूज़ करके अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को थोड़ा कम कर सके, कार्बन की इमिशन। देखें जी, ये कार्बन मिशन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें रोल अदा कर रही हैं। मैं एक का जिक्र कर सकूँगा इसमें फॉसिल फ्यूल, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, कोल, नेचुरल कोल है, इनकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब इत्तेफाक से जो ऑटोमोबाइल्स अभी तक हम मुल्क में यूज़ कर रहे हैं वो या पेट्रोल से चलते हैं या वो डीजल से चलते हैं, ठीक है, या जो अगर हमारे इंजन है तो कोल से चल रहे हैं, जैसे पावर प्लांट्स हैं। इनको मिनिमाइज़ किया जाए। उसको मिनिमाइज़ करने के कई तरीके बयान किए जा चुके हैं कि लोगों के दफातर, उनके वर्क प्लेस, उनके होम रेजिडेंस से करीब होनी चाहिए। इसके लिए कोई ख़ास प्लानिंग बनानी चाहिए कि जो आदमी अब घर अपने वर्क प्लेस के करीब तलाश करते हैं उसको बेनिफिट दें और उससे साइकिलिंग पे आएँ, वॉक पे आएँ, ये चीज़ें कम हों। या कॉमन कोई ऐसी व्हीकल हो जो बहुत सारे लोगों को लेके जाए कि एक कार में एक बंदा आ रहा है, 10 बंदे 10 कारें यूज़ कर रहे हैं, वो 10 बंदे एक वैन में भी आ सकते हैं, 10 की बजाय एक इंजन इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट चाहिए। आइडियाज़ तो बहुत हैं लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट ना हो अमली तब्दीली आनी महाल है। जी, क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो है वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इस वजह से ही तो हम मतलब कि जी। इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, तो वाटर की असेस जो क्लीन वाटर है उसकी नहीं हो रही। क्लीन वाटर की असेस की वजह से असल में सैनिटेशन। बात यह है कि हम जो इमिटेशन करते हैं डेवलप्ड जी। नेशन को वो पूरी तरह कर नहीं सकते। जी ये बिल्कुल ऐसे है कि एक गरीब आदमी जो है अमीर आदमी को नकल लगाए, लकड़ की कार बना ले, जी ठीक है, एक एसी लगा के तस्वीर एसी की लगा ले जून के महीने में, तो हम तकरीबन इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जब पहले था तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा थे और ह्यूमन की जो वेस्टेज थे वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाते थे खेतों में, साइल में, एक सिस्टम था, फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ हो जाते थे। जब हमने इकट्ठे हुए बड़े बड़े शहर हमने बसा लिए, इतना उनके ऊपर लोड आ गया है कि देयर इज़ नो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल इन पाकिस्तान, कोई एक प्लांट भी नहीं है। और हमारा सीवेज वाटर डायरेक्ट हमारे रिवर्स में जा रहा है। न सिर्फ रिवर्स में जा रहा है, जो हैंड पंप का पानी है, जो कुएं का पानी है, उसमें खुद हमारे लैब में हमने काम कराया है, वो बैक्टीरिया जो फीकल मैटर में होते हैं वो हमारे पीने के पानी में मौजूद हैं, हमारे दही भले के सैंपल में मौजूद है। न सिर्फ मौजूद हैं, उनकी तादाद जो है वो ट्रिमेंडस डेंजरस अमाउंट तक मौजूद है। तो इनके लिए तो ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए जो फॉरेन और डेवलप कंट्रीज में बड़ा महंगा काम है। हमारे यहाँ तो सीवेज वाटर का जो उसका अखराज है शहरों से वही मुमकिन नहीं। आप लाहौर में देख लें कितने गटर लीक करते हैं, ठीक है, और वो पानी हमारे मुंह पे पड़ता है, हमारे खाने में मिक्स होता है, उससे तो बहुत सारी बीमारियाँ, हेपेटाइटिस, डायरिया और क्या क्या चीज़ें, आप इसको क्या जिक्र किया जाए। जिस तरह आपने लेके आए कि सैनिटेशन का हम क्या इंतजाम करें, उसमें तो ट्रीटमेंट प्लांट्स की ज़रूरत है विच आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एट द मोमेंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज़ कंसर्न। तो लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हमने डेवलप करना है और इतने बड़े शहर बसाने हैं, जितने बड़े शहर बड़े ममालिक में बसाए हैं, उसके साथ ये चेंजेस भी लानी होंगी। सर, जी जी आपको लगता है कि ये जो सैनिटेशन का मसला ये प्लास्टिक वेस्ट से भी थोड़ा सा कनेक्ट है? और प्लास्टिक जी हाँ, उससे क्लॉग्स हो जाते हैं। जो कैनाल्स हैं, एफ्लुएंट डिस्चार्जेस कैनाल्स हैं, पाइप्स हैं, तो वो क्लॉग हो जाते हैं और हम प्लास्टिक से बाज नहीं आ रहे। ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बहुत ऐसे 100 ईयर्स लग जाते हैं कहीं ये फंस जाए वहाँ से उसको डिग्रेड होने में। तो ज़ाहिर है कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, हमें शूर होना चाहिए कि हम इसको ना यूज़ करें, ठीक है, या इसका वेस्टेज के प्रॉपर मेथड्स होने चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज़ द मेन इशू, जिसमें वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी और हर चीज़ जैसे प्रोटेक्शन आ जाती है। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह बचा सकते हैं उसका देखिए, हम नेचुरल रिसोर्सेज पे ही ज़िंदा हैं, जी उसके उनको इस्तेमाल किए बगैर तो नहीं रह सकते। रिड्यूस हो रहा हाँ, एक लफ्ज़ है प्रिजर्वेशन जी, जी। और एक है कंजर्वेशन, है। ओके ठीक है। तो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन थोड़ा सा फ़र्क है। ये है अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं। देखिए, अगर एक बाग है या एक घास है, मैदान है, उस घास को जितना भैंस खाती है, हमने जो रखी है, इतना ग्रो कर जाता है, फिर तो कोई मसला नहीं, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। लेकिन जितना ग्रो करता है उससे 10 गुना ज़्यादा हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हम नुकसान में है, वो ख़त्म हो जाएगा। यही हुआ है कि जो रिसोर्सेज हैं इनकी यूटिलाइजेशन पर कंट्रोल्ड हो, जितनी उनकी रिकवरी है, जितनी, या दूसरी सूरत ये है कि हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, हम ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, ज़्यादा जंगलात लगाएं, ठीक है। और ये कोई ऐसी बात नहीं जो ना हो सके। छांगा मांगा का जंगल देख लें, ये मसनूई जंगल है, ये अंग्रेज़ों ने लगाया था ताकि जो ट्रेन की पटड़ी है उसकी जो लकड़ ज़रूरत होती है वो हमें हासिल हो। वो हासिल होने के बाद अब तक वो जंगल मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ करनी पड़ेंगी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनको रिप्लेनिश करने की तरफ भी आएँ। सर ने जैसे फ्रस्ट्रेशन की बात की, तो सबसे बड़ा मेजर इशू जो है वो क्लाइमेट चेंज ही आ रहा है हमारे यहाँ, मतलब वजह बन रहा है जो डिस्ट्रक्शन की है हमारे इन्वायरमेंट को।
क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर का एक जो कनेक्शन है वो क्या है, आप थोड़ा डिस्कस। देखिए एग्रीकल्चर में लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस मौसम में अगर हम फलां पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसकी कल्टीवेशन करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आते हैं। ये लोगों को मालूम था, जो किसान थे, जो हमारे फार्मर थे, उनको ये मालूम था अच्छी तरह। और उस ज़माने में जिस ज़माने में वो बेहतर पैदावार लेते थे, वो ज़ाहिर है कि उन्हें अंदाज़ा था कि बारिशें इतनी होती थी, टेम्परेचर इतना होता था, हवा में नमी इतनी होती थी, ये चीज़ें फिक्स थी। अब क्लाइमेटिक चेंज से ये जो रिजाइम है ये ज़रा शिफ्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें अब साइंटिस्ट का रोल है कि उसको आइडेंटिफाई करें कि कितना क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट हमारे क्रॉप्स पे आ रहा है, और क्या हमें क्रॉप्स को जो हमारे बंदे बधाए सिस्टम थे उनको कल्टीवेट करने के, उनको हार्वेस्ट करने के, उनको कुछ चेंज में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और ऐसी वैरायटीज़ लेकर आए जो क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसमें फॉर एग्जांपल थोड़ा टेम्परेचर राइज किया है या और प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, वो उन नए जो पैरामीटर्स आ रहे हैं या जो चेंज इन द एनवायरनमेंट है उसको रेजिस्ट कर सकें, उसकी मौजूदगी में, चेंज एनवायरनमेंट की मौजूदगी में पहले जितने कम अज़ कम हमें प्रोडक्शन में या उससे बेहतर भी दे सकते हैं। सो ए लॉट ऑफ रिसर्च इज नीडेड इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर पोल्यूशन जो है वो बड़ा ही एक प्राइम इशू है, तो एयर पोल्यूशन जो हमारी सिटीज़ में है हम उन्हें किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? देखिए एयर पोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जी। आपने तो एक लफ्ज़ कह दिया, इसके मैं 3 हिस्से करता हूँ ताकि आसानी से बात समझ आ जाए। पहला हिस्सा है पार्टिकुलेट मैटर का, कि ज़र्रात कहाँ से आते हैं, जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, डीजल के सूट पार्टिकल्स हैं। अब डस्ट को मिनिमाइज़ करना है तो हमें ग्रीनरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सड़कों को पुख्ता करना पड़ेगा, कच्ची सड़कें ख़त्म करनी पड़ेंगी, या ग्रीनरी हो या आपकी पुख्ता सड़कें हो तो डस्ट कहाँ से आएगी, नहीं आ सकती। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा है इसमें गैसेस का, जो टॉक्सिक गैसेस हैं, वो ज़ाहिर है कि जो आउटडेटेड व्हीकल्स हैं उनसे आ रहे हैं, जो पुराने इंजन हैं वो उनसे आ रहे हैं, और जो ऐसी कार्स हैं जिनमें प्लाटीनियम के कन्वर्टर लगे होते हैं ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड ना आए, उनका रवाज ज़्यादा बढ़े, और कम से कम फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन हो, और जो इंजन है वो अप टू डेट हो ताकि अनबर्न्ड गैसोलीन ना आए। ये पहली शर्त है। तीसरा ऐसा बायो पोल्यूटर्स का है कि उसमें माइक्रोब्स कहाँ से आ जाते हैं। तो माइक्रोब जो है ज़रा कि हॉस्पिटल एनवायरमेंट से आते हैं जहाँ से इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, बीमार लोग हैं, वहाँ से फैलते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर फिर चीज़ बनाते हैं, इसमें ह्यूमिडिटी भी आती है। तो अब ज़ाहिर है कि मेन अगर हम 2 चीज़ों को कंट्रोल कर लें, गैसियस पोल्यूशन, टॉक्सिक, वो कंट्रोल हो जाएँ, और पार्टिकुलेट मैटर जो जनरेट होता है, जो डस्ट होती है, डस्ट तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे भी, उनकी जो जनरेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये इनपुट हम कम कर लेंगे। बाकी हवा तो कॉमन है, हमने कंट्रोल कर लिया किसी साथ वाले मुल्क से, साथ वाले शहर से पोल्यूटेड हवा के रुख पे आ गए, वी कांट कंट्रोल इट। तो ये ग्लोबल इशू है, ये एक शहर का इशू नहीं है। जो चीज़ सांस हम लेते हैं वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें पहुँच चुकी हैं, ये जो हमने जनरेट किया वो किसके सांस को, रेस्पिरेशन को ख़राब करेंगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये ग्लोबल इशू है और इसीलिए इसमें ज़्यादा स्ट्रेस भी दिया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनके लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में कितनी है? हाँ, पाकिस्तान में इत्तेफाक से मैंने 5-7 लोगों को पीएचडी भी कराई। जी देखें, रिन्यूएबल एनर्जी भी होती है जो हमें मिलती रहेगी मुस्तकिलन। जी फॉर एग्जांपल फसल तो ख़त्म हो जाते हैं, या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं दोबारा हमारे मुल्क से निकलते हैं या नहीं निकलते, ये जहाँ पे इस वक्त जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे डिप्लीट हो जाते हैं, हम क्या करेंगे। लेकिन अगर हम प्लांट्स बेस पे आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स के जो फालतू हिस्से हैं जो हम फूड के तौर पे नहीं यूज़ करते, उनसे हम अगर अल्कोहल बनाएं, बायो हाइड्रोजन बनाएं, तो वो तो ज़ाहिर है कि हर साल ग्रो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इस पर बेसिक काम हो चुका है, स्टडीज़ हो चुकी हैं, हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स हैं जो प्लांट के उन हिस्सों से जिनको हम फूड के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते, सेलुलोज है, जो उनके पत्ते हैं मसलन, उनसे एथेनॉल भी बना रहे हैं, उनसे बायो हाइड्रोजन भी बना रहे हैं, और उसको ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में काम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का। और हमारा मुल्क में तो ख़ास तौर पर जो सूरज की रोशनी है, ये भी एनर्जी है। अब इस तरफ लोगों का रुझान हुआ जब बिजली बहुत महंगी हुई, वरना हम तो कब के कह रहे थे कि इतनी एनर्जी अब मुफ्त में हमें मिल रही है। मैं क्लास में कहा करता था ये हीट नहीं है, ये गर्मी नहीं है, ये अजाब नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, हमें एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट कर इस्तेमाल करें। अब लोग सोलर की तरफ भी आ चुके हैं, और जाहिर है सर पाकिस्तान में ज़्यादातर यूथ है और यूथ बहुत सारी चीज़ों को जानती है, मगर सस्टेनेबिलिटी जो मुतारिफ अभी भी करवाई जा रही है, जैसे वो चैलेंजेस ही अपने नहीं जानती, मतलब कि इन्वायरमेंट को क्या फेस करने पड़ रहे हैं उनकी वजह से। तो हम किस तरह एजुकेट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं उनके अंदर ये कल्टिवेट करने के लिए कि ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं? बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैंने यही बताया जाए कि जो एनवायरनमेंट है ये हमारा रिसोर्स है, कॉमन रिसोर्स है। ठीक है, अगर आपकी अपना खेत भी है तो उसमें हवा कहाँ से आ रही है, गैसेस कहाँ से आ रही हैं, पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, रन ऑफ जो है किसी दूसरे खेत से आ रहा है, उसकी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो भी आपके खेत में आ रहे हैं। तो हम एक कॉमन एनवायरनमेंट में रहते हैं, बेशक हमें ज़मीन के किसी के मालिक भी हो जाएँ, ये कॉमन एनवायरनमेंट हमारा रिसोर्स है। अगर हम अपने रिसोर्स को ही ख़त्म कर देंगे या पोल्यूट कर बैठेंगे तो यकीनन हम उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते।
ٹھیک ہے. تو اس کی پروٹیکشن پرزرویشن ہمارے ہی بینیفٹ کے لیے تاکہ یہ اس کی جو فوائد ہیں وہ سسٹینیبل رہیں, ہمیں ملتے رہیں, ہماری اگلی نسلوں کو ملتے رہیں, ہمیں ملتے رہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمارے ریلیجیس جو اسکالرز ہیں, ہمارے مذاہب میں بھی ایسی تعلیمات موجود ہیں, ان کو بھی اجاگر کرنا چاہیے, سائنٹیفکلی بھی لوگوں کو بتانا چاہیے. تو جب مسلسل ایک محنت کی جائے تو آ ہی جاتا ہے. دیکھیں 15 سال پہلے کتنے لوگ سگریٹ پیتے تھے, یونیورسٹی میں کتنے لڑکے سگریٹ پیتے تھے, اب آپ دیکھیں کوئی نہیں پیتا نظر آ رہا, ویری ریئر ہے. یعنی 99.9% فرق پڑ چکا ہے. صرف وہ سگریٹ کی ڈبے پہ اشتہار دیا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہو جاتا ہے, اس تصویر سے کتنا فرق پڑا ہے. اویئرنیس کا فرق پڑتا ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. سر جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے, بینگ اے ٹیچر آپ بیٹر جانتے ہیں, وہ کتنا رول پلے کر رہا ہے سسٹینیبلٹی کے فروغ؟ دیکھیں پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں سسٹینیبلٹی کا لفظ ابھی نیا متعارف ہوا. مختلف سبجیکٹس میں اس کے جو کنسرننگ آسپیکٹس ہیں وہ جب تک نہیں آئیں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اتنی متعارف نہیں ہوگی. لیکن ایک پہلے سے بھی چیزیں ہیں, یہ کہ نئی ٹرمز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, نیچرل پریزرویشن یا نیچر کی کنزرویشن کی بات ہے تو ہم 25-30 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اس سے پہلے کی ہے. اب یہ لفظ آ گیا ہے تو یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے وچ از انڈیکیٹنگ دی آلریڈی اسٹیبلش فیکٹس. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو متعارف کرایا جائے گا, سلیبس کا پارٹ بنایا جائے گا, تو یقیناً اس سے فرق پڑے گا. سسٹینیبل اربن پلاننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ پولوشن جو پاپولیشن اسے کنٹرول کیا جا سکے اور انوائرمنٹ زیادہ ہو سکے. جی, میں اس میں عرض کروں گا, جو آپ کی عمر ہے اس عمر میں ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ میں بہت تبدیلی لے آؤں گا, اور ہونا بھی چاہیے. اگر اس عمر میں بھی ارادے ٹوٹ جائیں تو پھر کب بننے ہیں. لیکن جو حالات ہیں, جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے حالات, وہ اس چیز کی طرف آ نہیں رہے. دیکھیے اب یہ نیو کیمپس سے پنجاب یونیورسٹی کے ارد گرد دیکھیں تو جو رہائشی اسکیمیں تھیں, جیسے ماڈل ٹاؤن ہے, گارڈن ٹاؤن ہے, اقبال ٹاؤن ہے, یہاں پہ جس جگہ پہ 2 گھر تھے 1 کنال میں 2 کنال میں, اب وہاں پہ اتنے پلازے بن گئے ہیں 15 منزلے 10 منزلے. اب جہاں پہ 2 گھروں کا ایفلوئنٹ جانا تھا, 2 گھروں کا ڈومیسٹک سیویج جانا تھا, وہاں پر 2 گھروں کا نیچے جائے گا, 200 گھروں کا جائے گا. اب آگے پائپ تو اسی کیپیسٹی کے انجینئر نے بچھائے تھے. ٹھیک ہے, اب پولوٹنٹس بھی, اوور لوڈ بھی اتنا 100 ٹائم بڑھ گیا ہے. تو پلاننگ ہونی چاہیے کہ یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے, یہ کمرشل ایریا ہے, اور یہاں سے اس سے زیادہ ہم گھر نہیں بنانے دیں گے. اس طرح کی کچھ کسی حد تک تو ایڈیا کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پھر جو ڈومیسٹک چیزوں کو کمرشلائزیشن کی طرف لے جاتے ہیں, اس میں لوڈ پڑ جاتا ہے. اب وہی سڑک جو پہلے پلاننگ ہوتی ہے کتنے ٹاؤنس کو کرے گی, اس سے 20 گنا زیادہ ٹاؤن بڑھ جاتے ہیں, پھر ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. ایسے جو ہمارے سیویج سسٹم ہے وہ بلاک ہو رہا ہے, جو ڈرینیج ہے ریور کا یا بارش کا پانی وہ پھر بلاک ہو جاتا ہے. تو سسٹم کی کیپیسٹی سے زیادہ جب لوڈ ڈالتے ہیں, اس کے ساتھ جب پولوٹنٹ ہمارا وے آف لیونگ کہ ہم ویسٹ کو پراپر ڈسپوز نہیں کرتے, جب مل جاتے ہیں تو پھر پلاننگ ساری خراب ہو جاتی ہے. سر پاکستان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے تھوڑی بہت جتنی بھی ہو رہی ہے, وہ انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور وہ کس طرف جا رہی ہے؟ میں نے بھی آپ کو مثال دی کہا انوائرمنٹل سٹیبل ہے. ٹھیک ہے, کہ جہاں پر ریزیڈینشیل ایریا اس کے اندر انڈسٹریز ایریا شروع کر دیتے ہیں, اس کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں. جہاں 2 گھر تھے وہاں پہ ایک بڑا سا ہوٹل بنا دیا جہاں پہ اب 100 لوگ آباد ہیں. سسٹینیبلٹی کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ میری اس سسٹم میں, اس کمرے میں کتنی ہوا آ رہی ہے, کتنے لوگ سانس لے رہے ہیں. اگر میں بندے زیادہ بٹھاتا ہوں تو پھر میں کھڑکیاں بھی کھولوں, کھڑکیاں میرے پاس وہی ہیں, میں پاپولیشن لوڈ جو بڑھاتا جا رہا ہوں, یہ تو کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے نا. بیفور گوئنگ آپ جو ہماری یوتھ ہے اس کو ایسا میسج دینا چاہیں کہ وہ سسٹینیبل انوائرمنٹ کے لیے اپنے کون سے رول پلے کر سکتی ہے, اپنی انرجیز جو ہیں وہ بیسٹ وے میں یوز کر سکتی ہے, وہ کوئی اگر آپ 3 پوائنٹ میں سمرائز کریں اٹ ول بی آلرائٹ. اچھا, یہ بہت مشکل کوشچن ہے جتنے آپ نے سوالات پوچھے. جی دیکھیں یوتھ کا ایک لفظ ہے, تو یہ ایسی ایج ہے جس میں میکسیمم جو پاورز ملنی ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے وہ مل چکی ہوتی ہیں. اور اب یہ یوتھ میں آج کل یوتھ کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی کم ہے. اس کی وجہ پولوٹنٹس ہے. دی ایئر وی آر بریدنگ, دی واٹر وی آر ڈرنکنگ, دا فوڈ وی آر ایٹنگ, کیرینگ لاٹ آف پولوٹنٹس وچ انہانس آور ایجنگ پروسیس. بہت جلدی ایجنگ آ رہی ہے, بہت جلدی ہیلتھ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ یوتھ رہتے تھے ڈیکڈز تک, اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کی حالت کیا ہے. ایون دین جو وگر ہے, جو پاور ہے, جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اسی عمر میں ہے جس عمر میں آپ ہیں. اس وقت آپ جو بننا چاہیں وہ بن سکتے ہیں. اور اگر اپنے کنٹری کے حوالے سے کہ ظاہر ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں سے ہم نے فوائد اٹھائے ہیں, جیسے تیسے بھی ہیں, ہمارا یہ ملک ہے, اس کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنے ایجوکیشن کو امپروو کریں, اپنے مارل ایکٹیویٹی کو امپروو کریں. ہم کم از کم ہمارے اندر یہ کنسیپٹ پیدا ہو جائے
کہ صرف میں نے نہیں جینا, میرے ساتھ جو ہے جی رہے ہیں انہوں نے بھی جینا ہے. اور بیسیکلی تو یہ ہے کہ ان کو کنسیپٹ یہ ہو جائے گا کہ اگر ایک انوائرمنٹ بہتر ہوگی اس میں میرا ہی بینیفٹ ہے, میرا ہی فائدہ ہے, اور اگر دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے کمیونٹی کا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, کمیونٹی کا فائدہ سوچنا چاہیے. یہ ایک مسلم بھی ہمارے, ہمیں تو یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ جو اپنے لیے پسند کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. جہاں تک تعلیمات ہیں کہ وہ مسلمان وہ جو ہے وہ پسند ہی دوسروں کے لیے وہی کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو اگر یہی ایک نقطہ لے لیا جائے تو اگر ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ میرے گھر کے سامنے کوئی گند پھینک جائے, کوئی ویسٹ پھینک جائے, تو میں کسی کے گھر کے سامنے گاڑی سے جاتے ہوئے کیوں پھینکوں. یہی ایکٹیویٹی اگر ہم ایک اصول ہی اپنا لیں تو ہم خود بھی اچھی زندگی گزاریں گے, ہماری وجہ سے لوگوں کو راحت ملے گی, تکلیف نہیں ملے گی, اور وہ بھی ہم سے خوش ہوں گے. تو جب سارے خوش ہوں گے تو ان کی ایفیشنسی بڑھے گی, ان کا سکون بڑھے گا, ان کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا, ماحول بھی ٹھیک ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ماحول اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں, اور جس کا ایک گیٹ نہیں ہے جس کو بند کر کے ہم ٹھیک کر لیں. اس کا ملٹی فیسیٹڈ پرابلم ہے اور اس کے ملٹی فیسیٹڈ ہی سلوشن ہمیں تلاش کرنے ہوں گے. Thank you so much for your precious time. It was honor اور آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت ہی اچھا لگا. To our viewers, thank you so much being connected with this episode. I hope this episode will be informative for you guys and stay tuned for more interesting conversations.